Yes, good morning, everyone. Okay. So yesterday we have finished till queues, right? Today we will start our new module, that is trees. Am I audible? Okay. So trees in the very first class of data structure we have discussed, it is a non-linear data structure, right? All the data structures that we have seen till now, array structure, stack queues, they were linear data structures. Data was arranged in a linear fashion. But trees is a kind of a non-linear data structure where and it represents hierarchical relationship between its elements. Okay, these things we have discussed in the very first class of data structures also. It is a nonlinear data structure and it represents hierarchical relationship between its element between elements. For example, suppose I create a tree something like this: a, b, c, suppose d, like this. Suppose this is a small tree. Okay, so obviously this is a non-linear data structure. There is no array, stack, or queue in which data is entering in one order only. Okay, there is a hierarchy that is following. A is on the first level, then B and C, then D. It's like this. This is the meaning of non-linear and hierarchical relationships. Okay, it's in the hierarchy kind of a thing. If you see, like D's parent is B, B's parent is A, A's child is B and C, B's child is D. Like this. अभी child और parent क्या है we'll discuss in a while. Next, you have finite set of nodes. These are known as nodes. A, B, C, D. These are called as nodes. And this from A to B, the line that you are seeing, this is known as a vertex. Okay, so you have finite set of nodes and edges kalo ya vertex kalo, everything is same. Edges. Okay, and there is no circuit. और circuit का मतलब होता है cycle. There is no cycle in a tree. For example, अब nodes और edges की बात करते हैं. When I'm saying finite set of nodes and edges is means what are the nodes in this tree? The nodes are A, B, C, and D. These are nodes. Whatever is written inside the circle, this is known as a node. What are the vertex or edges? Anything you can call. So first vertex is from A to B. This is one vertex or edge. Another edge is from A to C. Another edge is from B to D, right? And there is no circuit or cycle, so you will not have any cycle in a tree. If you see this tree, there is no cycle. Cycle means if suppose I would have an edge like this, then it was a cycle from A to B, B to C, then again from C to A. This was a kind of a cycle. अगर ऐसा edge मैं बनाता, if I would have made a edge of this kind, right? But I don't have any edge in a tree. So if you see any edge in any cycle in a tree, you will not call that a tree. That will become a graph. ठीक है, वो ग्राफ में बात करेंगे उसके बारे में. सो फॉर नाउ इन ट्रीज यू डोंट हैव एनी साइकिल्स. अभी तक दिक्कत किसी को? एनी डाउट्स? नेक्स्ट पॉइंट, you will have only one root जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा, with no parent. What is a root? This, the topmost node is known as a root node. ओके, जैसे ट्री का रूट होता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में देखना है. ओके, योर ट्री समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ट्री का रूट इस तरह ट्री ग्रो कर रहा है. योर ट्री इज ग्रोइंग समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये ट्री का रूट है. दिस ए इज योर ट्रीज रूट. ठीक है, एक ही रूट होगा हर ट्री में. यू कैन हैव ओनली वन रूट और उस रूट का कोई भी पेरेंट नहीं होगा. अब पेरेंट और चाइल्ड एक बार देख लेते हैं फर्स्ट. तो सपोज मैं ए की बात करूं, पेरेंट मतलब ए कहां से आ रहा है? क्या ए के ऊपर कोई नोड दिख रहा है? कैन यू सी एनी नोड अबव ए? ए के ऊपर कुछ है? नो. सो ए का पेरेंट कुछ नहीं है, राइट? इफ यू सी बी,
क्या बी के ऊपर कोई नोड दिख रहा है जहां से बी आ रहा है, फ्रॉम वेयर बी इज कमिंग? यस, यू आर सीइंग दैट बी इज कमिंग फ्रॉम ए, राइट? बी इज कमिंग फ्रॉम ए, सो बी का पेरेंट इज ए. इफ यू सी सी, अगर सी का पेरेंट पता करना है तो सी का पेरेंट इज ए, बिकॉज सी इज कमिंग फ्रॉम ए. इफ यू सी डी, डी का पेरेंट इज बी, डी का पेरेंट इज बी, राइट? डी का ग्रैंड पेरेंट इज ए. वैसे ग्रैंड पेरेंट की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें, बट इट्स ऑल्सो टर्मिनोलॉजी इन ट्रीज. ओके, अगर डी के ग्रैंड पेरेंट की बात करें तो डी का पेरेंट है बी और बी का पेरेंट है ए, सो डी का ग्रैंड पेरेंट है ए, राइट? चाइल्ड की बात करते हैं. चाइल्ड मीन्स अगर ए का चाइल्ड देखें, हाउ मेनी चाइल्ड ए हैव, सो ए से दो एजेस जा रही हैं, सो ए के दो चाइल्ड्स हैं, बी एंड सी. अगर बी की बात करें, बी के कितने चाइल्ड्स हैं? बी का एक ही चाइल्ड है, दैट इज डी. सी के कितने चाइल्ड हैं? जीरो. देयर इज नो एज दैट इज कमिंग आउट ऑफ सी, सी का कोई भी चाइल्ड नहीं है. सो ये हो गया पेरेंट और चाइल्ड की बातें. देन except this root node, except root node, each node will have exactly one parent. एक से ज्यादा पेरेंट नहीं होंगे किसी भी नोड के. इफ यू सी दिस डायग्राम ऑल्सो और दिस ट्री ऑल्सो, every node except the root node, obviously root node का पेरेंट नहीं होता, that's why every node, every other node will have exactly one parent. D का पेरेंट exactly B है, B का पेरेंट exactly A, C का पेरेंट exactly A. So every node will have exactly one parent, not more than one. Then you can say any node may have, not any, every node, you can say every node will have either zero or more child. मतलब जीरो चाइल्ड भी हो सकते हैं, यू कैन हैव जीरो चाइल्ड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल डी, डी में यू हैव जीरो चाइल्ड. सी, सी में यू हैव, सी का देर इज नो चिल्ड्रन ऑफ सी, so सी यू हैव जीरो चाइल्ड. बी यू हैव वन चाइल्ड. A, you have two childs. Okay, so either every node will have zero child or it will have more than zero childs. Fine. I'm defining the properties of trees. ठीक है, अब इसमें से कुछ याद नहीं करना है. There is nothing to remember here. Just keep this thing in mind. This is how tree works. With more examples, practice, it will be a lot easier. Then the last point is there will always be a unique path from root node to any other node, from root to each node. Okay, if you want to traverse or you want to travel from root node to any node, for example suppose A से मुझे D तक जाना है, so there is only one path that I can visit. Suppose I want to visit C, so there is only one path from root node using which I can visit. For example suppose यहाँ पे एक और node होता E, suppose मुझे A से E जाना था, I wanted to travel from A to E, so there is only one path using which I can travel. So these were some of the properties of trees. Any doubts? अब in your syllabus basically we have four kind of trees. Okay, first is binary tree, then binary search tree, then ABL trees, then B trees. वो पढ़ने से पहले there are some terms, depth, height, degree, जिसके बारे में पता होना चाहिए. So first we will discuss all the terms related to trees so that whenever I am using them in future classes you should not get confused किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. So पहले थोड़ा just let's roughly create a tree. Suppose A to B, E, how बड़ा, let's just create it a big. A, B, C, suppose this is D, E, F, I, इधर बनाओ पहले G, H, I, J, and let's say K is here. Suppose I have a tree like this. Okay,
नाउ द फर्स्ट टर्म दैट, सो वी हैव डिस्कस रूट क्या होता है. यहाँ पे रूट क्या है? रूट इज ए, राइट? ओनली वन रूट यू हैव, दैट इज ए. देन पेरेंट, पेरेंट क्या क्या है? ए इज अ पेरेंट, बी इज अ पेरेंट, सी इज अ पेरेंट, ई इज अ पेरेंट, एफ इज अ पेरेंट, जी इज अ पेरेंट, एच इज अ पेरेंट. इज डी अ पेरेंट? इज डी अ पेरेंट? नो, राइट? डी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो जब चाइल्ड नहीं है तो डी पेरेंट कैसे हो सकता है? सो डी इज नॉट अ पेरेंट, आई इज नॉट अ पेरेंट, जे इज नॉट अ पेरेंट, के इज नॉट अ पेरेंट, एच इज नॉट अ पेरेंट. ठीक है. चाइल्ड की बात करते हैं. रूट नोट को छोड़ के सब चाइल्ड है, राइट? बी इज अ चाइल्ड, सी इज अ चाइल्ड, डी इज अ चाइल्ड, ई इज अ चाइल्ड, एफ इज अ चाइल्ड, जी इज अ चाइल्ड. सारे चाइल्ड हैं, राइट? ये कुछ टर्म्स थे जो हमने पहले भी डिस्कस किए. नेक्स्ट कम्स लीफ नोट्स. ओके, और लीव्स कुछ भी बोल सकते हैं, जो पत्ते हैं सबसे लास्ट में. ओके, सो लीफ नोट्स आर द वन जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो. लीफ नोट्स आर द वन हु डोंट हैव एनी चाइल्ड, मतलब जो ट्री के लास्ट लेवल पे हैं बेसिकली, वो जनरली लीफ नोट्स है. ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट लेवल पे हो. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ऐसा भी एज हो सकता है मेरे पास, से एल. ओके, सो लीफ नोड का मतलब क्या है? एनी नोड which don't have any child. So D is a leaf node, I is a leaf node, J is a leaf node. इनका child नहीं है ना, there is no child. F is a leaf node, K is a leaf node, H is a leaf node, L is also a leaf node. जिनके child नहीं है, they are known as leaf nodes. Okay, इसको लिख लेना in your own words. अब इसकी कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, व्हाट इज अ लीफ नोड. इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना है, साइड में कहीं लिख लो. खाली ये लिखोगे लीफ नोड डी आई जे के है, यू विल गेट कंफ्यूज व्हाइल रिवाइजिंग. So just write in a short form जिसका कोई child नहीं है. Okay, just keep on making short notes whatever I'm explaining. So parent, root, child, leaves we have discussed. Next comes subtree. What is a subtree? Okay, so suppose I want to find the subtree of A. I want to find the subtree of A. Okay, so इसका मतलब है from A you will have left child, right child and more than left right child also. For example, I can have one third child also here, say L. सो सब ट्री ऑफ ए अगर निकालना है तो दिस इज वन सब ट्री ऑफ ए, दिस इज अनदर सब ट्री ऑफ ए, दिस इज अनदर सब ट्री ऑफ ए. मतलब जितने चाइल्ड है वो पूरा का पूरा चाइल्ड से भी जितना ट्री बन रहा है. ए का चाइल्ड था पहला बी, सो बी से जितना ट्री बन रहा है नीचे पूरा का पूरा, दैट विल बी वन सब ट्री ऑफ ए. अनदर चाइल्ड ऑफ ए वाज सी, तो सी से पूरा नीचे पूरा सी कवर करेंगे, दैट विल बी अनदर सब ट्री ऑफ ए. ए का थर्ड चाइल्ड वाज एल, तो एल तो अकेला था, एल वॉज अ सिंगल नोड, सो दिस वॉज माई थर्ड सब ट्री. सपोज अब मुझे बी का सब ट्री निकालना है. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दी सब ट्री ऑफ बी. सो बी से जितने चाइल्ड जा रहे हैं, हर चाइल्ड से पूरा नीचे तक. बी का एक चाइल्ड है डी, सो दिस विल बी माई वन सब ट्री. बी का अनदर चाइल्ड है ई, सो ई से पूरा नीचे तक वॉट एवर ट्री यू कैन गेट, दैट इज माई सेकेंड सब ट्री ऑफ बी. बी का थर्ड चाइल्ड इज एफ, सो एफ से जितना पूरा नीचे जा सकते हो दैट विल बी माई थर्ड सब ट्री. क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ सब ट्री. ऐसे ही हर नोड का सब ट्री निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली के जितने लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड्स मतलब इनके चाइल्ड नहीं है, उनके सब ट्री नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल एच का सब ट्री नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज नो लेफ्ट राइट और एनी चाइल्ड, राइट? एच का कोई भी चाइल्ड नहीं है तो सब ट्री कहां से होगा? के का कोई भी चाइल्ड नहीं है तो सब ट्री कहां से होगा? आई का कोई भी चाइल्ड नहीं है तो सब ट्री कहां से होगा, राइट? तो लीफ नोड के सब ट्रीज नहीं होते हैं. एनी डाउट्स एनीवन? ओके, नाउ डिग्री ऑफ नोड्स. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, नेक्स्ट दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखना. डिग्री ऑफ अ नोड. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ए. ए की डिग्री क्या है? कुछ नहीं, जितने चाइल्ड हैं उतनी डिग्री. द नंबर ऑफ चाइल्ड अ नोड हैव, वही उसकी डिग्री है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ए, तो ए के कितने चाइल्ड हैं? ये एल हटा दो यहां सभी के लिए. हाउ मेनी चाइल्ड दिस ए हैव? टू चाइल्ड्स, बी एंड सी, तो ए की डिग्री भी होगी टू. आई वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ बी. व्हाट विल बी द आंसर? थ्री. जितने चाइल्ड उतनी डिग्री. सो बी के तीन चाइल्ड है, डी ई एंड एफ, सो बी की डिग्री होगी थ्री. व्हाट इज द डिग्री ऑफ के?
0. K का there is no child, so its degree is 0. Fine. Okay. Now degree of tree. डिग्री ऑफ ट्री. अभी तक हमने देखा डिग्री ऑफ नोड्स, हर नोड की डिग्री कैसे निकालनी है, जितने चाइल्ड है वो उसकी डिग्री है. नाउ व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ट्री, जो मैक्सिमम डिग्री होगी किसी भी नोड की वो डिग्री होगी ट्री की. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ट्री, तो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, जिस नोड की भी डिग्री सबसे ज्यादा है, वही डिग्री बन जाएगी ट्री की. सो इफ यू सी सबसे ज्यादा डिग्री है बी की, बी के सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है, द डिग्री ऑफ बी इज 3. द डिग्री ऑफ बी इज 3 क्योंकि बी के सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है. तो जो बी की डिग्री है दैट विल बी द डिग्री ऑफ द ट्री इटसेल्फ. सो डिग्री ऑफ द ट्री विल बी 3. क्लियर? नेक्स्ट पाथ की बात कर लेते हैं. व्हाट इज अ पाथ? ओके, सो पाथ का मतलब कुछ नहीं. सपोज यू वांट टू ट्रैवल जे, यू वांट टू ट्रैवल जे, जे विजिट करना है मुझे रूट नोड से. सो पाथ होगा ए टू बी to E to J. This is the path. If you want to visit J, can there be any other path to visit J? No. In the properties itself, I have told you unique path exists to visit any node. एक ही path हो सकता है बस. Fine. Next comes the level of a tree. Level of tree. देखो level का मतलब ये होता है जो root node होता है that is by default at level 0. This root node A is by default at level 0. ऐसे बनाया ना ट्री मैंने, ये रूट है ट्री की, फिर ऐसे जाएंगे ऊपर. राइट, ट्री उल्टा रखा हुआ है. जो रियल लाइफ ट्री होता है उससे अगर इफ यू कंपेयर, दिस इज केप्ट इन द रिवर्स ऑर्डर. तो जो ए है, जो रूट है, वो लेवल 0 पे है. बी और सी ये आपके लेवल 1 पे है. डी ई एफ जी एच ये आपके लेवल 2 पे है. आई जे के ये आपके लेवल 2 पे है. फाइन. व्हाट करते? ठीक है. अब ये लेवल कैसे आया? जब ये मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हाउ वी एक्चुअली स्टोर. या लेवल एग्जिस्ट इन नॉन लीनियर. वाई? दो, दिस इज दिस लेवल, कि कौन सा रूट कौन से लेवल पे. तो प्रॉपर्टीज में भी लिखाया होगा व्हेन वी वर डिस्कसिंग इन द फर्स्ट क्लास. देयर आर लेवल्स. हायरार्की है तो लेवल है ना. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हायरार्की होती है. हायरार्की है, अगर किसी ऑफिस में हायरार्की एग्जिस्ट करती है, सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्यून, उसके ऊपर सपोज कोई मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर सपोज कोई सीईओ है. सो देयर इज अ हायरार्की इन ऑफिस, मतलब लेवल है ना. कोई लेवल 0 पे, फिर कोई लेवल 1 पे. या दैट इज व्हाई. फाइन. Sir, if we have L with A, what would be its level? Sorry, if we have L with A, कहाँ L होता तो वो लेवल 1 पे होता. मंशा, L होता तो वो लेवल 1 पे होता. A के सारे चाइल्ड एक ही लेवल पे होंगे. A के सारे चाइल्ड एक ही लेवल पे होंगे. B के सारे चाइल्ड एक ही लेवल पे होंगे. C के सारे चाइल्ड एक ही लेवल पे होंगे. ई के सारे चाइल्ड एक ही लेवल पे होंगे. चाइल्ड एक ही लेवल पे होते हैं सिंपली. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब बात करेंगे हम लोग बाइनरी ट्रीज एंड हाउ वी स्टोर देम इन द मेमोरी. ठीक है, इसे मेमोरी में कैसे बनाते हैं, एरे यूज करके बनाते हैं, लिंक लिस्ट यूज करके बनाते हैं, हाउ वी क्रिएट देम इन द मेमोरी. तब ज्यादा समझ आएगा ये एक लेवल पे कैसे आ रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्रामेटिकली एक लेवल पे आ रहा है. बी और सी एक लेवल पे क्यों है? क्योंकि ये स्टोर भी ऐसे ही होते हैं मेमोरी में. ओके, वो बात करेंगे डिटेल में. बट फॉर नाउ रूट इज एट लेवल 0, बी सी एट लेवल 1, बाकी सारे लेवल 2, फिर लेवल 3, और भी चलता रहेगा तो लेवल बढ़ता रहेगा. फाइन. ओके, नाउ हाइट एंड डेप्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले बात करते हैं हाइट. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट हाइट ऑफ ए. इसका मतलब है इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइट, दिस मींस लीफ से ए तक पहुंचने का लॉन्गेस्ट पाथ. दिस इज द हाइट. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइट ऑफ ए, दिस मींस what is the longest path from the leaf node
टू रीच ए। अब यहाँ पे देखो ए से लीफ नोड से ए, लीफ नोड कौन कौन से, डी है, आई है, जे है, के है, एच है। ए के लिए लीफ नोड ही सारे हैं। अगर डी से मैं ए तक जाऊं तो एक, दो, ओके। अगर आई से मैं ए तक जाऊं, इफ आई ट्रेवल ए फ्रॉम आई, सो वन, टू, थ्री, ओके। इफ आई ट्रेवल ए फ्रॉम जे, सो वन, टू, थ्री, ओके। इफ आई ट्रेवल ए फ्रॉम एफ, वन, टू, यहां से वन, टू, थ्री, वन, टू, मैक्सिमम थ्री मिल रहा है, या तो टू मिल रहा है या तो थ्री मिल रहा है, सो मैक्सिमम जो होगा वो आंसर होगा, दैट इज थ्री। So height of A is 3. That is from leaf node, what is the maximum path or maximum number of nodes I will cross to reach A? Suppose I want to calculate height of say B. B की height निकालनी है, right? So leaf node से B तक पहुंचने में maximum path क्या है? Leaf node एक D है, D से यहां तक 1 में आ जा रहे हो, यहां से 1 2 में आ रहे हो, यहां से 1 2 में आ रहे हो, यहां से 1 में आ रहे हो। इस पार्ट को तो आ ही नहीं सकते, इस पार्ट से तो B तक आ ही नहीं सकते, राइट? फ्रॉम दिस पार्ट, दिस होल सब ट्री, वी कैन नॉट रीच B, तो उसको तो इग्नोर कर दो। जो B के लीफ से बस उन्हीं को देखना है, तो उसमें मैक्सिमम आंसर 2 आ रहा है। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट हाइट ऑफ D। व्हाट इज द हाइट ऑफ D? 0। जब D का कोई लीफ ही नहीं है, जब सॉरी जब D का कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो कहां से D तक पहुंचोगे ऊपर? सो इट्स 0। यू आर रीडिंग ट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम एवरीवन, राइट? हैव यू read it before? Because you are answering good. It's good. If you are understanding it properly, it's perfectly fine. So this was height. Okay. This was height of every node. It's very good. If you are understanding it first time, it's very good. So this was height of nodes. Okay. How you calculate height of every node. Suppose I want to calculate the height of tree itself. Height of tree itself. Right. तो height of tree का मतलब कुछ नहीं हो गया, root node. Height of tree का मतलब है height of root node. That's it. Height of tree का मतलब है height of root node. That's it. So 3 होगा. Fine. Now the next one is depth. अब देखो हाइट और डेप्थ में कंफ्यूजन नहीं हो ना, दोनों उल्टा है एक दूसरे के, दे आर अपोजिट। हाइट का मतलब होता है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइट ऑफ एनी नोड, उसका मतलब होता है लीफ नोड से उस नोड तक आने की डिस्टेंस। इफ यू वांट टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ एनी नोड, तो वो उसका उल्टा होगा, मतलब रूट नोड से उस नोड तक आने की डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ जे, तो इसका मतलब है रूट नोड से जे तक आने की डिस्टेंस। हाइट में क्या था, लीफ से उस नोड तक आ रहे थे। डेप्थ में क्या है, फ्रॉम रूट नोड वी आर गोइंग टू विजिट that particular node. For example, if we want to calculate depth of j, तो मतलब root node से j तक पहुंचने में कितना distance लगेगा? So 1 2 3, so depth of j is 3. Suppose you want to calculate depth of this, क्या लिखा हुआ है, g, तो root node से g तक पहुंचने की distance, so 1 2, that is 2. What will be the depth of this root node, that is a? 0, right? Depth of a will be 0. root node से depth है 0. What will be the depth of the tree? ट्री की डेप्थ क्या होगी? डेप्थ ऑफ ट्री, जो लॉन्गेस्ट पाथ है, सिंपली सिंपल। ट्री की गहराई देखो हिंदी में मतलब क्या हो, ट्री की गहराई कितनी है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट लीफ हो सकती है वही गहराई होगी। सो द लॉन्गेस्ट इज 3 आई गेस, राइट? 1 2 3, सो लॉन्गेस्ट इज 3, सो डेप्थ ऑफ द ट्री विल बी 3। ठीक है, डेप्थ और हाइट एक ही जैसे हैं, बस उल्टे एक दूसरे के। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, हम नीचे से बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्थ, हम ऊपर से बात कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड्स। इंटरनल एंड, सो इंपॉर्टेंट पार्ट वही था जो हमने डिस्कस कर लिया, कुछ और टर्म्स हैं, लेट्स डिस्कस दोज आल्सो। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड्स। एक्सटर्नल नोड्स का मतलब होता है लीफ नोड्स, जो बाहर है। ओके, फॉर एग्जांपल हियर एक्सटर्नल नोड्स विल बी डी, आई, जे, के, एच, व्हाटएवर आर द लीफ नोड्स, दे विल बी माय एक्सटर्नल नोड्स। उनके सिवा एवरीथिंग रिमेनिंग विल बी नोन एज इंटरनल नोड्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट दीज आर द टर्म्स, तो मैंने बता दिया। सिबलिंग्स, लेट्स डिस्कस अबाउट, नहीं नोड्स की बात कर रहे हैं कार्तिक, है ना? सब ट्री तो पूरा का पूरा फिर से खुद ट्री हो गया।
सब ट्री तो पूरा का पूरा ट्री ही है खुद से, है ना, ये पार्ट खुद में एक ट्री है। नोट्स मतलब पर्टिकुलर नोट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इंटरनल नोट्स, एक्सटर्नल नोट्स। सिबलिंग्स मतलब वही भाई बहन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एंड जे आर सिबलिंग्स, I and J are siblings. D, E and F are siblings. G and H are siblings. B and C are siblings. That's it. यही होता है siblings. Fine. Mm, yeah, that's it. So these were some of the important terms and terminologies related to trees. किसी को डाउट है कोई अभी तक? Now we will discuss the types of trees. Okay. So basically you have, वैसे तो जितने मर्जी उतने टाइप्स बना सकते हैं, because this is just a data structure. You can modify it accordingly and you can create your own tree also. Doesn't matter. But generally we have four major kind of trees. First, and the very popular one, is binary trees. Second is binary search trees, BSTs. Third is AVL trees. Fourth is B trees. Okay. Now your syllabus is created in such a way that जो हमने फोर्थ मॉड्यूल पढ़ रहे हैं उसमें बाइनरी ट्री पढ़ा रहे हैं, फिफ्थ मॉड्यूल में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सर्चिंग, फिर बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्रीज, बी ट्रीज, और फिर सॉर्टिंग. So it's a kind of a mix match. We are not going to do in that way. What we are going to do is एक साथ ये सारा खत्म करेंगे. When we are reading trees, we will complete binary, BST, AVL, B trees. सारे के सारे एक साथ खत्म करेंगे. Very interesting topics. कुछ complicated नहीं है. Very important. Not for the semester, for your whole career. Okay, tree is a kind of a thing. अभी भी पढ़ोगे, थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे, फोर्थ ईयर में भी पढ़ोगे, जब तक कंप्यूटर साइंस से अटैच्ड हो, you are going to read these data structures. Stack, linked list, queues, trees. पढ़ना ही है, जिंदगी भर पढ़ना है, जब तक कंप्यूटर साइंस से अटैच्ड हो. जब जॉब कर रहे होगे तब भी पढ़ रहे होगे. Okay, these are those data structures. So first we will discuss regarding binary trees one by one. We will discuss everything, how to create them, और भी इसमें क्या क्या है वगैरह वगैरह. So first we are going to discuss regarding binary trees. अब binary trees में भी बहुत से types होते हैं. Okay, the first type is strictly binary tree, और you this is also known as full or proper binary tree. पहले लिख लो सारे types, then we'll discuss. Second type of binary tree is complete binary tree. Complete binary tree. Third type is perfect binary tree. Fourth type is balanced binary tree. Fifth type is extended binary tree. अब हो सकता है इसमें से परफेक्ट वाला सिलेबस में ना हो, या ये ना हो, या वो ना हो. इट्स पॉसिबल, बट दैट डजंट मैटर. इफ यू आर रीडिंग बाइनरी ट्रीज, वी विल कवर इट कंप्लीटली. ठीक है, कुछ छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज बाइनरी ट्रीज. सो सबसे पहले स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और फुल और प्रॉपर बाइनरी ट्री क्या बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब है यू विल हैव एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री और प्रॉपर बाइनरी ट्री. जब भी ये वर्ड सुनोगे, इसका सिंपल सा मतलब होता है यू विल हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन और नन. या तो दो चिल्ड्रन होंगे हर नोड के, या तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई क्रिएट अ बाइनरी ट्री लाइक दिस, ए बी सी डी ई. दिस इज अ बाइनरी ट्री, राइट? No, sorry, this is a tree, right? This is a normal tree which we have been discussing till now. क्या ये बाइनरी ट्री है? अच्छा, नॉर्मली तो, अरे रुक जाओ, नॉर्मल बाइनरी ट्री के टाइप्स में स्टार्ट कर दिया हमने. पहले एक थोड़ा सा वो तो देख लो, व्हाट इज अ बाइनरी ट्री. सिंपली बाइनरी ट्री क्या होता है वो तो देखा ही नहीं हमने अभी. सो बाइनरी ट्री का मतलब होता है एवरी नोड, नॉर्मल बाइनरी ट्री. ओके, दिस नॉर्मल बाइनरी ट्री, एक जनरलाइज अगर मैं बोल रहा हूँ बाइनरी ट्री, तो उसका मतलब क्या होता है, एवरी नोड विल हैव मैक्सिमम टू चिल्ड्रन. हर नोड के मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो सकते हैं. इसका मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, एट मोस्ट मतलब हो सकता है जीरो चिल्ड्रन हो, किसी नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है पॉसिबल. एक चिल्ड्रन हो पॉसिबल, या फिर दो चिल्ड्रन होंगे मैक्सिमम. पेरेंट तो सबके सिंगल होते हैं कार्तिक, ट्री में ही, ट्री में सबके पेरेंट सिंगल होते हैं, तो प्रॉपर्टीज में लिखा है ना.
जब भी हम लोग ये टाइप्स पढ़ रहे हैं बाइनरी ट्रीज, तो उसमें से चाइल्ड की बात करेंगे। बाइनरी ट्री को देखो नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मतलब दो होता है, बाइनरी मतलब दो होता है, राइट? सो बाइनरी ट्री का मतलब होता है एवरी नोड विल हैव मैक्सिमम two children, maximum two children. For example, suppose I create something like this: A, B, C, D, and E. Suppose I create a tree like this. This is a tree. Definitely, this is a tree. But क्या ये binary tree है? No, this is not a binary tree because A के तीन children हैं. And I have told you maximum you can have two children. So this is not a binary tree. This is a normal tree, but this is not a binary tree. Suppose मैं यहाँ से एक child A का हटा दूं. Now is this a binary tree? Yes, right? Because every node have maximum two children. अगर A की बात करें तो A के दो child हैं, ठीक है? B की बात करें तो B का एक child है. What I have told you, maximum two children. एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट दो से ज्यादा नहीं हो सकते. So B का एक ही child है, so fine. C का zero child, fine. D का zero child. So yes, every node is satisfying the criteria. So this is a binary tree. So ये बात हो गई binary tree की. That what is a binary tree? Every node can have maximum two children. Now comes the first category of binary tree, that is strictly full or proper binary tree. ये बोलता है that every node will have exactly two children या none. या तो हर नोड के दो चिल्ड्रन होंगे या तो एक भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई क्रिएट समथिंग लाइक दिस: ए, बी, सी, टी. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. क्या ये ट्री है? ऑब्वियसली दिस इज अ ट्री, दिख ही रहा है, राइट? दिस इज अ ट्री बिकॉज दिस इज अ नॉन लीनियर एंड हायरार्किकली स्टोर्ड. सो दिस इज अ ट्री. क्या ये बाइनरी ट्री है? दिस इज अ बाइनरी ट्री बिकॉज एवरी नोड हैव मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, या तो जीरो या तो वन या तो टू. सो दिस इज अ बाइनरी ट्री ऑल्सो. क्या ये फुल, अब इसकी बात कर रहे हैं, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नो. इफ यू सी नोड बी, इसका एक चिल्ड्रन है, दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज फुल बाइनरी ट्री सेज दैट एवरी नोड विल हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन या फिर नन. सपोज यहां पे मैं एक और चिल्ड्रन लगा दूं ई. क्या अब ये फुल बाइनरी ट्री है? इज दिस नाउ अ फुल बाइनरी ट्री? यस, राइट. बिकॉज एवरी नोड हैव आइदर टू चिल्ड्रन और जीरो. ए के दो चाइल्ड है, बी के दो चाइल्ड है, डी, ई और सी के चाइल्ड नहीं है. सो दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री. नाउ दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. अब इसको यूज कहां करते हैं? ओके, वी यूज दिस जनरली टू सॉल्व अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. एग्जैक्टली जीरो और टू, मनीब, एग्जैक्टली जीरो और टू चिल्ड्रन. क्योंकि नॉर्मल बाइनरी ट्री में वन चाइल्ड भी हो सकता है, राइट? पर ये फुल बाइनरी ट्री बोलता है वन चाइल्ड नहीं हो सकता, या तो जीरो या तो टू. Now we use this to solve arithmetic expressions basically. For example, suppose I write a arithmetic expression like this: a plus b into c. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वी विल क्रिएट अ फुल बाइनरी ट्री. कैसे? सबसे पहले a प्लस बी हो रहा है, सो प्लस ए बी. इसका रिजल्ट कहां पे स्टोर होगा? इस जगह स्टोर होगा, इस नोड पे स्टोर होगा. द रिजल्ट ऑफ a प्लस बी विल बी स्टोर्ड एट दिस सर्किल, राइट? ये रिजल्ट पास हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन को, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ. So if you see, is this a full binary tree? Right? Every node have either two child or zero child. Okay. So this is how we solve arithmetic expressions. ठीक है? जिसमें ये number of operands जो होते हैं वो leaf nodes होते हैं. The number of operands will be leaf nodes, और जो operators होते हैं वो बीच में सारे आएंगे. Okay, this is how we have created. तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Suppose I write, say, इसके लिए बनाओ खुद से एक ये फुल बाइनरी ट्री. ट्राई करो. a minus b, c multiplied by d, say plus e, और ये. ट्राई टू क्रिएट अ फुल बाइनरी ट्री फॉर दिस वन. फुल क्या, फुल ही बनेगा ही. बाइनरी ट्री भी बनाने जाओगे फुल ही बनेगा इसका. ट्राई इट वंस. a माइनस बी का सब ट्री अलग बना लो, फिर इस पार्ट का बना लो, फिर दोनों को डिवाइड में अटैच कर देना. क्रिएट द ट्री फॉर a माइनस बी हेयर. c इंटू डी प्लस ई का यहां बना लो,
एंड देन दोनों को ऊपर डिवाइड को पास कर देना. आई एम सेइंग पहले a माइनस बी का बनाते हैं. सो माइनस ए बी. इट विल बी लाइक दिस एवरीवन, है ना. a माइनस बी ऐसे हो गया सर. एडिशन ऑफ विल, हाँ एडिशन ऑफ ई विल फॉर्म सेपरेटली. अब इस पार्ट को देखते हैं. इस पार्ट में सबसे पहले वी आर हैविंग c इंटू डी. सो ये हुआ c इंटू डी. दिस इज माई c इंटू डी. नाउ द आंसर ऑफ c इंटू डी इज गेटिंग एडेड विथ e. c इंटू डी का आंसर यहां पड़ा है. ये पास करोगे प्लस को, और इसके लेफ्ट राइट में पास करोगे e को. देखो जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट चाइल्ड है, जो राइट में है वो राइट चाइल्ड है. माइनस ऑपरेटर था, माइनस के लेफ्ट में a था, तो माइनस का लेफ्ट चाइल्ड a होगा. माइनस के राइट में b था, तो माइनस का राइट चाइल्ड विल बी b. मल्टीप्लीकेशन का लेफ्ट में c है, सो मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट चाइल्ड इज c. राइट यू हैव d, सो मल्टीप्लीकेशन का राइट इज d. नाउ प्लस के लिए c इंटू डी इज लेफ्ट, सो ये लेफ्ट है. प्लस के लिए e इज राइट, सो ये राइट है. अब डिवाइड, डिवाइड के लेफ्ट में पूरा a माइनस बी है, मतलब यहां से डिवाइड ये. एंड ऑब्वियसली दिस इज अ, अभी थोड़ा बना ऐसे ऊपर नीचे है, बट दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री. बिकॉज इफ यू सी डिवाइड, डिवाइड के दो चाइल्ड है, माइनस एंड प्लस. इफ यू सी माइनस, उसके दो चाइल्ड है a एंड b. इफ यू सी मल्टीप्लाई, उसके दो चाइल्ड है c एंड d. इफ यू सी प्लस, उसके दो चाइल्ड है मल्टीप्लाई एंड c. इफ यू सी a, उसका जीरो चाइल्ड है. सो आइदर यू आर हैविंग जीरो चाइल्ड और यू आर हैविंग two childs. So this is a full binary tree. Clear? Any doubts? No, 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 no. Parse trees नहीं मनुष्य. Parse trees तो compiler design का topic है. Parse trees कहाँ से आ गया? Parse trees a compiler design subject, है ना. वो compiler design में बनता है parse trees. But parse trees are also, yeah, you must have studied that in compiler topic in PPL. Parse tree is a kind of tree, but it's not a binary tree. Binary tree नहीं होता है वो. Tree होता है definitely, but binary tree नहीं होता है. Now the next and the very important and very famous binary tree is complete binary tree. अगर बाइनरी ट्री में भी कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, कंप्लीट बाइनरी ट्री. इसका मतलब ये है, फर्स्ट लेट्स यू राइट इट डाउन व्हाट आई एम सेइंग. इफ ऑल द लेवल्स एक्सेप्ट, आई एम टॉकिंग लेवल्स. लेवल याद है ना, रूट जीरो पे है, फिर वो वन पे है, फिर टू पे है. लेवल्स. इफ ऑल द लेवल्स एक्सेप्ट द लास्ट हैव maximum number of nodes, maximum number of nodes. What I'm trying what I'm trying to say is, if every node except the last level nodes have maximum number of possible childrens or nodes, it will be known as a complete binary tree. ऐसे समझ कुछ नहीं आया होगा. Let's just see an example. What I'm saying is, suppose I want to create a binary tree of T26. This is how it is represented. This means I am creating a binary tree, complete binary tree. I am creating a complete binary tree with 26 nodes. तो अभी कैसे होगा? Obviously I will start with same level पे हो, second last. अभी देखते हैं, रुको. Let's just discuss first. So I will start with the root node, that is 1. Root node का left child will be 2, right child will be 3. तीन नोड मैंने इंसर्ट कर दिया. अब दिस इज अ बाइनरी ट्री, राइट. सो इससे ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते 1 के. नाउ अब 2 का चाइल्ड आएगा. 2 का लेफ्ट चाइल्ड इज 4, 2 का राइट चाइल्ड इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. चलो T18 बना लेते हैं खाली. T18, T18. Now if you see in this tree,
every level, this is level 1, level 0, this is level 0, this is level 1, this is level 2, this is level 3, and this is level 4. Right, I have 4 levels in my tree, 5 levels basically, starting from 0. कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है हर लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने पॉसिबल, इफ यू सी लेवल 0, यहाँ पे एक ही नोड पॉसिबल था, राइट. एट लेवल 0 ओनली वन नोड वाज पॉसिबल, दैट वाज रूट नोड. इन लेवल 1 सिर्फ 2 ही नोड्स पॉसिबल थे, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं ना, क्योंकि एक के 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं. सो मैक्सिमम 2 ही नोड्स हो सकते थे लेवल 1 पे. सो 2 नोड्स हैं यहाँ पे. इफ यू सी लेवल 2 पे मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं, 2 चाइल्ड होंगे 2 के, 2 चाइल्ड होंगे 3 के, सो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं. एट लेवल 2 मैक्सिमम आई कैन हैव 4 नोड्स. इफ यू सी लेवल 3, इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4. 4 पेरेंट है, सबके 2 बच्चे होंगे, 4 into 2. लेवल 3 पे कितने नोड्स हो सकते हैं, 1 2 3 4. 4 पेरेंट है, सबके 2 बच्चे होंगे, 4 into 2 8. सो 8 नोड्स विल बी एट लेवल 3. क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस. एक्सेप्ट द लास्ट लेवल पे वैसे कितने होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 to the 16 होने चाहिए थे, बट है 3. So that is why I have written except the last level. So according to my definition, is this a complete binary tree? Starting से start करते हैं. क्या ये ट्री है? Obviously this is a tree. क्या ये binary tree है? क्या हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है? Yes. Right? क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? Is this a full binary tree? क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं. फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है 0 या 2. इफ यू सी दिस 9, 9 के कितने चिल्ड्रन है? 9 का एक चाइल्ड है, 9 का एक ही चाइल्ड है, सो दिस इज नॉट अ फुल बाइनरी ट्री. क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस. According to the definition, every level is having maximum possible number of nodes except the last level. अब इसी को अगर एक मुझे मैथमेटिकल वैल्यू या फॉर्मूला देना हो, हर नोड पे मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, कैन यू स्पेसिफाई जनरली? इफ आई आस्क यू हाउ मेनी चाइल्ड यू शुड हैव एट लेवल 2, क्या आंसर होगा? 2 to the power n. वेरी गुड. 2 to the power n. ओके, हर लेवल पे 2 की पावर n नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम. लेवल 0 पे 2 की पावर 0, दैट इज 1, 1 नोड होगा. लेवल 1 पे 2 की पावर 1, दैट इज 2 नोड्स होंगे. लेवल 2 पे 2 की पावर 2, दैट इज 4 नोड्स होंगे. लेवल 3 पे 2 की पावर 3, दैट इज 8 नोड्स हो सकते हैं मैक्सिमम. लेवल 4 पे मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 2 की पावर 4, दैट इज 16. बट 16 नहीं है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन एक्सेप्ट द लास्ट नोड. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मेनी नोड्स यू कैन. अभी अभी इंपॉर्टेंट नहीं, हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. हाउ मेनी नोड्स यू कैन हैव at level say 100 in a complete binary tree, so 2 की पावर 100. फाइन, इसको लिख लेना साइड में. ईच लेवल हैव मैक्सिमम 2 की पावर n नोड्स. नाउ सपोज यहां से मैं 15 को हटा दूं, आई डिलीट 15 here. इज दिस अ कंप्लीट बाइनरी ट्री नाउ? नो, because I have told you at this level 0 1 2 3, at this level I should have 2 की पावर 3, that is 8 nodes. यहाँ 8 nodes होने चाहिए, because this is not my last level. लास्ट लेवल होता तो एक्सेप्शन दे देता, जैसे इस लेवल को एक्सेप्शन मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट माई लास्ट लेवल. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ही नोड्स हैं, 8 नोड्स नहीं है. सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग डेप्थ. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री? डेप्थ याद है ना सबको? डेप्थ में क्या कर रहे थे, ऊपर से आ रहे थे, रूट नोड से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस. रिमेंबर, दो चीजें डिस्कस की थी, हाइट एंड डेप्थ. हाइट एंड डेप्थ, राइट. हाँ 4 ही होगी, 1 2 3 4, 4 होगी.
फाइन. अगर इसका एक जनरलाइज्ड इफ यू वांट टू गिव, यू कैन, इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी होता है डेप्थ का, दैट इज log base 2 of n plus 1. ओके, छोड़ो फॉर्मूले में मत जाओ अभी, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा. बाकी नॉर्मल जैसे डेप्थ निकालते हैं वैसे इसकी डेप्थ निकालो. ओके, इस ट्री की डेप्थ क्या होगी, रूट नोड से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द लीफ नोड. सो मैक्स लीफ नोड मैक्सिमम ये यही वाला दिख रहा है 18 17 वाले. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ही है. फाइन. एनी डाउट्स एनीवन? क्या नंबर ऑफ लेवल्स आर आल्सो डेप्थ? मतलब मंशा, सर मतलब लेवल पे वो आखिरी नोड है तो वही इक्वल टू डेप्थ एक ही होगा। बात, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है. सेम, एक ही बात है. बट लेवल पे जनरली इसलिए नहीं करते क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में यू कैन चेंज द लेवल. आई कैन से यू दैट, वैसे बाय डिफॉल्ट जैसे एरे होता है, बाय डिफॉल्ट एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विद जीरो, ए ऑफ जीरो. उसी तरह बाय डिफॉल्ट दिस इज लेवल जीरो, बट इन योर एग्जाम आई कैन चेंज इट. दिस इज नॉट स्टार्टिंग विद जीरो, दिस इज स्टार्टिंग विद लेवल 100. अब डेप्थ क्या होगी तब चेंज हो जाएगा ना. गेटिंग इट? इफ आई से यू दैट दिस इज नॉट स्टार्टिंग विद लेवल जीरो, दिस इज स्टार्टिंग विद लेवल 100, तब सिर्फ लेवल पे डिपेंड नहीं कर सकते आप. ओके, इसका जनरलाइज्ड लॉग फॉर्मूला है सिंपली डायरेक्टली. ओके, log 2 base n plus 1, this is your formula if you simply want to calculate. ओके, इस फॉर्मूले में यहाँ पे लेवल नंबर ऑफ n इज योर नंबर ऑफ नोड्स बेसिकली. चलो बता ही देता हूँ, वैसे गेट में इसकी जरूरत पड़े इतना इंपॉर्टेंट. दिस इज अ हाई लेवल टॉपिक अ बिट. ओके, बट स्टिल जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपीज इफ यू वांट. द डेप्थ इज log ऑफ बेस 2 ऑफ n प्लस 1. ये डेप्थ होती है. अब इसको निकालते हैं कैसे, ऐसे कोई जादू से नहीं आ गया, इसका पूरा कैलकुलेशन है. अभी समझने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है हाउ इट इज डन. But n is your number of nodes. For example, if this is a binary tree of 18 nodes, okay, तो इसकी डेप्थ क्या होगी. अब ऐसे बनाओगे तो नहीं ना. अगर मैं, अब मैं तुम्हें दे दूं टी ऑफ 1000 इन योर एग्जाम, इफ आई गिव यू टी ऑफ 1000, तो इस तरह बनाओगे कंप्लीट बाइनरी ट्री बैठ के. इट्स जस्ट अ टाइम वेस्टेज, राइट. पूरा बनाओगे फिर देखोगे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या है लीफ की. दिस इज नॉट पॉसिबल, right? So what we do is you directly substitute the value here in place of n. For example, 18 substitute करो यहाँ पे. So log 2 of 18 plus 1. ठीक है, log 2 of 18 जनरली आंसर देगा समथिंग 3 पॉइंट समथिंग कुछ देगा, प्लस 1 फ्लोर में. 3 पॉइंट समथिंग प्लस 1 आएगा 4 पॉइंट समथिंग इन फ्लोर. तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 4. गॉट इट? सपोज आई से यू दैट आई एम क्रिएटिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री टी ऑफ 1000. बताओ इसकी डेप्थ क्या होगी. अब थोड़ी बैठ के 1000 नोट्स बनाओगे इस तरह, फिर देखोगे क्या डिस्टेंस है. यू कैन डू दिस मैनुअली, नॉट पॉसिबल. यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट इट हियर. log 2 1000 प्लस 1 इन फ्लोर. फ्लोर पता है ना, लोएस्ट वैल्यू लेगा. 4 पॉइंट समथिंग आया तो 4 लेगा, जो भी इसका आंसर होता है. यू कैन सॉल्व इट. इसको भी लिख लो, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट थिंग है, वैसे इंपॉर्टेंट है. फाइन. वैसे इसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं लगा है. अगर इसका कैलकुलेशन भी, इफ यू वांट टू सी हाउ इट इज डन, लॉग की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है. ओके, इट डिवाइड्स एवरीथिंग इनटू हाफ्स और इट इंक्रीजेस एवरीथिंग इनटू टू साइड्स. या तो इस चीजों को आधा आधा डिवाइड करता है, 8 को 4 में करेगा, देन 4 विल बी डिवाइडेड इनटू 2, 2 विल बी डिवाइडेड इनटू 1. या तो ऐसे जाएगा, या तो इट विल डबल अप एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल 2 को डबल करके 4 करेगा, 4 को डबल करके 8 करेगा, 8 को डबल करके 16 करेगा. दो तरीके से लॉग काम करता है. इफ यू सी, जस्ट गेट अ इंट्यूशन, पूरी मैथ्स में नहीं जाओ, जस्ट गेट द इंट्यूशन. व्हाट इज दिस वन डूइंग. वन दो नोट्स में बट गया, एक का दो हो गया, राइट. एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो गए, दो ही हो सकते हैं. टू के फिर से दो चाइल्ड हो गए, थ्री के फिर से दो चाइल्ड हो गए. तो यहाँ पे एक था तो यहाँ पे दो हुआ, यहाँ पे चार हो गया ना. यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 16 होगा, अगला 32 होगा. गेटिंग इट? लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना ये पाथ. डबल करता जा रहा है ना एवरीथिंग. दैट इज वाई ये लॉग बेस 2 ऑफ एन आया. प्लस 1 क्या आ रहा है, 1 ये रूट नोड का आ रहा है. 1 ये रूट नोड का आ रहा है डिस्टेंस. दैट्स इट.
दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज जनरेटेड, और कोई इसमें खास चीज नहीं है। समझ गए? अरे वैसे मत करो यार किशान। हाइट तो डेप्थ अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाइट और डेप्थ रिवर्स है एक दूसरे के। जब मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो लीफ नोड से रूट तक आने में क्या डिस्टेंस लगा, वैसे वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू डेफिनेटली सेम आएगी, अगर हाइट ऑफ ट्री और डेप्थ ऑफ ट्री निकाल लो तो वैल्यू सेम आएगी किशान। इट्स अ गुड थिंग विच यू हैव आस्क्ड। अगर हाइट ऑफ ट्री और हाइट डेप्थ ऑफ ट्री निकाल लो तो सेम आएगा, बट हाइट ऑफ अ नोड, you know, that will change. इसीलिए हाइट जनरली वी आर नॉट गोइंग टू यूज, द टर्म दैट वी आर गोइंग टू यूज इज डेप्थ ओनली, क्योंकि वैल्यू सेम ही होती है इन दोनों की। इफ यू थिंक लॉजिकली, एक ट्री की डेप्थ क्या और एक ट्री की हाइट क्या है, सेम ही तो मतलब है, बस देखने का तरीका अलग है। ओके, एंड वी आर जनरली फॉलोइंग डेप्थ कॉन्सेप्ट ओनली, क्योंकि रूट से ही देखेंगे वहां तक पहुंचने का डिस्टेंस। ओके, सो दिस वाज माय कंप्लीट बाइनरी ट्री। नाउ द थर्ड, अब थर्ड टाइप क्या था उसमें, विच वाज द थर्ड वन? परफेक्ट बाइनरी ट्री, राइट? परफेक्ट होगा। थर्ड टाइप इज परफेक्ट बाइनरी। परफेक्ट बाइनरी कुछ नहीं, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। इन कंप्लीट बाइनरी आई हैव टोल्ड यू एवरी लेवल विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। अगर लास्ट लेवल पे भी मैक्सिमम नोड्स आ जाए, अगर ये भी फुल हो जाए, इफ द लास्ट लेवल ऑल्सो गेट्स फुल, दिस विल बिकम अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब परफेक्शन आ गया, सब फुल हो गया, लास्ट लेवल पे भी 2 के पावर n नोड्स आ गए, सो दिस इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। बस यही है परफेक्ट बाइनरी ट्री, और कुछ नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज balanced. You have your class after this at 10? चलो, still let's stop it here. Okay, अभी बैलेंस बाइनरी ट्री, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज बैलेंस बाइनरी ट्री देखेंगे। उसके बाद एक और है आपका ईबीटी। ठीक है, दो टाइप्स बच गए, वी विल कंप्लीट दैट। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विथ बाइनरी ट्रीज इन मोर डिटेल। ठीक है, बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट, उसको ट्रावर्स कैसे करते हैं, हाउ वी एक्सेस देम इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सारी चीजें रिगार्डिंग बाइनरी ट्रीज। देन वी विल मूव टुवर्ड्स बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, then AVL trees, then B trees. जब ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, we have to see searching and sorting techniques. Searching and sorting PPL में नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? Sequential search और linear search पढ़ लेंगे, bubble sort kind of a thing. Searching and sorting we will lead, and the last topic will be, अच्छा, hash tables भी होंगे. Hash table is a pretty small topic, and then the last topic is your graphs. So this is your syllabus that we have to go. This, then this, then this, then this. Okay. Most probably from not this Saturday, from next Saturday you will have your extra classes every Saturday. Chalo, we'll meet next week. Thank you.